why now ये डॉक्यूमेंट व्हाइट पेपर अभी क्यों, इसके लिए मैं जवाब अभी भी दे रही हूँ। सबको मालूम भी है, हमारे व्हाइट पेपर में भी वो है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 2015-16 में ही एक मीडिया के इंटरव्यू में बोले थे, इट्स नॉट एज इफ आई एम स्टैंडिंग हियर टू से इट नाउ. Even in 15-16, Honorable Prime Minister made a statement that there is a lot of suggestions coming that I should lay a white paper on the halat of the economy. But I'm not doing it because of national interest. I put the nation first. Because if the truth of the state of affairs of our economy was put out at that time, not one investor would have come to India. Our own citizens would have started feeling what is happening in this country. All institutions have broken down. No proper decision making is happening. Sir, the total big ticket corruption, leave the small ones, big ticket corruption in their 10 years. Big ticket corruption on an average was one at least each year. So, common people were really disillusioned. ये इस देश में क्या हो रहा है? So, हमारे अपने own citizens would have lost faith by the white paper. So, we didn't want to. PM very clearly said we didn't want to bring it at that time. Now, why now? 10 years. 10 years of governance. 10 years of sincere effort to clear up the economy. 10 years of sincere effort to make sure that we are not going to stagnate because of the legacy which has been left behind, and therefore we wanted to make sure that we do reforms. We also undertake everything which has to be done for cleaning up the system. And today, from the fragile 5 situation, we've reached the 5th biggest economy, and sooner we will be reaching the 3rd, now with authority, where the economy is already stabilized and people are coming in. Our foreign exchange reserve is improved, FDI is coming in, a lot of sovereign wealth funds are coming and having joint ventures, investment in greenfield projects. We had 10 years which can therefore be periodically compared with those 10 years and with this 10 years, so that people are not going to say, you came in saying big things, but you know you can't implement, and therefore you are saying, like some of the state governments which are saying, having given false promises, they are not able to run their state government, put the blame on central government, come and protest in Jantar Mantar instead of being in their state and administering their state. So such things would have been easily accused on us at that time had the white paper been put then itself. We didn't do that. Responsibly, we took the challenge of getting everything sorted out. Now having sorted out, now having placed the economy in a proper position, we have, with documentary evidence, we put it out there and that is why now the white paper is being put and nothing more. Sir, national security. Critical shortage of ammunition and defense equipment was the main feature of 2014 when we inherited the economy. Manya Raksha Mantri is here. I am saying it before him. What was the halat then? Bulletproof jackets were not available for our soldiers. वो सामने बंदूक लेकर हमारी एनिमी खड़े होते तो उनके पास उनके अपने प्रोटेक्टिव गियर तक नहीं था. Night vision goggles were not available. So in the nights, they couldn't do a thing. In pitch dark, they were exposing themselves like sitting ducks. I'm reading a line. I'm quoting from somebody's words. I'll say who it is. I'm quoting, sir. Independent India has had a policy for many years that the best defense is not to develop our borders. An undeveloped border is safer than a developed border. So, many years, there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas, unquote.
ये किसने कहा सर? तब की डिफेंस मिनिस्टर, तब की रक्षा मंत्री A.K. एंटनी जी। सर उनके बेटे हमारे पास है कि नहीं है वो मतलब नहीं है, रिकॉर्ड में डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट पढ़ रही हूं। सर A.K. एंटनी जी also stressed a number of times that his ministry has used up 92% of defense budget and major acquisitions have acquisitions have to wait and there's no money. Inaugurating the defense expo in 2014 डिफेंस एक्सपो को इनॉग्रेट करते हुए रक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं प्रगति मैदान में, कोट, देयर इज नो मनी लेफ्ट, ऑल मेजर प्रोजेक्ट्स विल हैव टू वेट टिल 1 अप्रैल। मतलब गवर्नमेंट बदल रही है, उनको समझ में आ गया है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरे हाथ में पैसा नहीं है, आप अप्रैल 1 को वेट करो। बॉर्डर में सोल्जर को मैसेज दे रहा है तब तक लड़ो कैसे भी, मगर मैं तो खरीदना मेरे से नहीं होगा, ये था उनका एटीट्यूड। सो लगातार हमारे डिफेंस का कॉम्प्रोमाइज हुआ और टोटल इग्नोरिंग ऑफ आर्म फोर्सेस। करेक्टिव मेजर्स हमारी तरफ से क्या हुआ? डिफेंस बजट हैज डबल्ड ड्यूरिंग द लास्ट 10 years. इट वाज 2013-14 में 2.53 लाख करोड़ था, अभी 6.22 लाख करोड़ है 24-25 में, बढ़ गई डिफेंस बजट। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग बॉर्डर रोड्स एंड फॉर डिफेंस फोर्सेस equipment investments, defense capital budget increased from 86,741 crores 2013-14 में 86,000 crores था, अभी 1.72 lakh crores है डिफेंस बजट इस साल। सर 75% of capital acquisition budget is earmarked, ये मुख्य बिंदु है सर। 75% of capital acquisition मतलब खरीदारी के लिए जो पैसा देते हैं उसमें 75% डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए खर्च करना पड़ेगा। ये नहीं है कि विदेश से इंपोर्ट करते रहो। उसके अलावा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर्स ले आए, उसके वजह से उत्तर प्रदेश में भी और तमिलनाडु में भी प्रोक्योरमेंट, डिफेंस का प्रोक्योरमेंट उधर से अभी ज्यादा हो रही है। लॉन्च ऑफ इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस आईडेक्स फ्रेमवर्क सपोर्ट्स इंडिजिनस एमएसएमईज। सर इसके अलावा एफडीआई लिमिट इन डिफेंस प्रोडक्शन हैज बीन रेज्ड टू 74%. All ordnance factory boards have been converted into 7 defense PSUs. सर गर्व की बात है, मेक इन इंडिया पुश के वजह से आज INS विक्रांत, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, आकाश, ब्रह्मोस मिसाइल्स, मेन बैटल टैंक अर्जुन, आर्टिलरी गन सिस्टम धनुष, ये सब भारत में उत्पादन हो रहा है सर। इसके अलावा महिला आज राफेल भी उड़ा रही है, बॉर्डर में भी बंदूक लेकर खड़े हैं, महिला पूरे के पूरे डिफेंस में है। सर बार बार रोते थे HAL को क्या हुआ, HAL को ऑर्डर नहीं दिया, जब एक कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवाया नहीं 10 साल में HAL को। हम कर रहे हैं HAL को बिजनेस 4 लाख करोड़ तक दिए, बहुत सारे वैरायटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन उधर होने वाले हैं, 4 लाख करोड़ किए दिए ऑर्डर्स। और HAL का नया फैक्ट्री है जो माननीय प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेट किए, फाउंडेशन स्टोन 2006 में ले किए, वो HAL मॉडर्न तेजस फाइटर जेट्स को अभी इंडिया सेल्फ डिफेंस के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं HAL। ये HAL है सर
जिसके बारे में वो आंसू बहाते थे, एक ऑर्डर भी नहीं दिलवाया। हम इतने कर रहे हैं HAL के लिए। जयंती टैक्स के विषय में आ रही, जयंती टैक्स के विषय में आ रही। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री सर, एवरेज डिले in grant of environmental clearances increased from on an average 86 days होता था, वो जाकर के 316 दिन तक हुआ between 2011 to 2014। एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए कागज एक साल से ज्यादा ऑलमोस्ट 316 डेज तक वेट करके फिर भी नहीं मिलता था। 350 फाइल्स उनके पास पेंडिंग में वेट करती थी, मूव नहीं हुआ। 315 फाइल्स। हाँ, रविशंकर जी पूछ रहे हु वाज द मिनिस्टर। मैं बोलूंगी सर, वो एक कोटेशन से वो जवाब मिल जाएगा रविशंकर जी को, और वो कोटेशन उनका ही कोलीग है जो लॉ प्रैक्टिस करने वाले एक वेरी सीनियर लॉयर के कोर्ट है, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन थे अभिषेक मनु सिंघवी जी, उनका कोट पढ़ रही हूं सर रविशंकर जी का जवाब के लिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक मनु सिंघवी जी बोले, द टर्म जयंती टैक्स was well known and understood by business circles। वही है उसका डेफिनेशन। जयंती टैक्स मतलब क्या है? अभिषेक मनु सिंघवी जी बोल रहे हैं कि ये तो पूरे बिजनेस वर्ल्ड को पूरे समझ है इसके ऊपर, आप समझ लो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं डेट भी बोल रही हूं, टाइम भी बोल रही हूं, सोर्स भी बोल रही हूं, ये मेरा इमेजिनेशन नहीं। इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर में इसका रिपोर्ट हुआ 31 जनवरी 2015 में। जयंती टैक्स का मतलब पूरे बिजनेस वर्ल्ड का समझ है भाई। आप क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? ये कॉमन वर्ड है। आप क्या प्रश्न ऐसे तरीके से जवाब दिया गया, ये है उनके एनवायरमेंट क्लियरेंस का घपला। इसके विषय में आइए, मैं ये बात बोलना चाहती हूं, आंदोलन जीवी और भ्रष्टाचार जीवी की सरकार, आंदोलन जीवी और भ्रष्टाचार जीवी की सरकार ने जयंती टैक्स को जन्म दिया। वो जिसिया था, जिसिया बोलते हैं ना सर एक जमाने में, ये जयंती टैक्स जसिया था, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए जसिया। आप दो पैसा फिर देंगे। ये जसिया जयंती टैक्स, ये है व्हाइट पेपर में आ रहे विषय एनवायरमेंट के ऊपर। सर, लाइसेंस परमिट राज, जसिया लाइसेंस परमिट राज वापस ले आए एनवायरमेंट टैक्स के द्वारा। सो सर, हमने क्या किया? बैलेंस्ड प्रकृति एंड प्रगति, इसको बैलेंस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रगति भी चाहिए, प्रकृति भी चाहिए। वी ब्रॉट इन ट्रांसपेरेंसी, एवरेज टाइम, मैंने 316 डेज बोला। एवरेज टाइम फॉर क्लियरेंस, एवरेज टाइम फॉर अप्रूवल्स टू बी क्लियर्ड एट सेंट्रल लेवल हैज बीन reduced to 70 days। 316 डेज और कुछ, उससे 70 डेज तक आ गए। फॉरेस्ट कवर increased by 50,000 square kilometers। नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज 745 थे 2014 में, अभी 998 प्रोटेक्टेड एरियाज है। नंबर ऑफ कम्युनिटी रिजर्व्स 43 थे 2014 में, अभी 220 है। 12 बीचेस, भारत देश में 12 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। मतलब स्पष्ट, क्लीन, गुड बीचेस, एनवायरमेंटली गुड बीचेस। सर, globally India stands 4th in renewable power, 4th in wind power and 5th in solar power। आगे इतनी दूर तक हम आए हैं। 30-fold increase in solar energy capacity
since 2014. यूपीए का मिसमैनेजमेंट, यूपीए का घोटाला ड्रिवन 10 साल, यूपीए का मिसमैनेजमेंट, क्रोनी कैपिटलिज्म, ये सब का केंद्र बिंदु है लीडरशिप का प्रॉब्लम, रडरलेस लीडरलेस. सर, माननीय सोनिया गांधी जी was super prime minister as the chairperson of the National Advisory Council, an extra constitutional and unaccountable person. Of course, sir, सुबह मैंने एसबीआई चेयरमैन के विषय बोले, आर के तलवार जी के विषय बोले, वो नहीं मेंशन, मगर कांग्रेस के डीएनए में करप्शन, बैंक को मिसयूज करना, ये संदर्भ में उसको मैंने बोला. ऐसे ही ये मिसमैनेजमेंट और फ्रेजाइल फाइल का इकोनॉमी में आने का कारण क्या है? हर एक घोटाला का एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं, मगर इन सब का कारण क्या है? मैं जरूर बोलना चाहूंगी, लीडरशिप अगर सही है तो ऐसे हालात होता क्या? इसीलिए सर, मैं बात इसलिए बोल रही हूं, गवर्नेंस के ऊपर ये मेजर दबाव था, बिकॉज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उनको मिला. 710 फाइल्स एनएसी के बाद एनएसी का परमिशन लेने के लिए सरकार से गया. क्या वो कैबिनेट है? क्या वो अप्रूव्ड पार्लियामेंट है? क्या वो स्टैंडिंग कमेटी है? क्यों उनके हाथ में जाना 710 फाइल्स? वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है क्या? वो अनअकाउंटेबल पावर था, अनअकाउंटेबल अनआंसरेबल पावर था. पार्लियामेंट में उसका जवाब देने का स्थान ही नहीं था. उनके पास क्यों 710 फाइल्स गया? ऐसे ही अनअकाउंटेबल पावर के कारण ये गपले, साल में एक बड़ा टिकट गपला होता रहा. ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल यूज ऑफ पावर. Who had a kitchen cabinet से वर्ष सुपर प्राइम मिनिस्टर उनके एनएसी के द्वारा एक्टिविस्ट आंदोलन जीवी बना रहे कानून, उसको मंजूर दे रही हो? वो अच्छा कानून बोल रही हो? वो तब आपको आपत्तिजनक नहीं माना? बहुत सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने ब्लैक मनी, सीबीआई, ईडी दुरुपयोग बोलते हैं ना सर. मैं डेटा देती हूं. पीएमएलए जो कानून को एनफोर्स करने वाले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हैं, ठीक है सर, 2005 से 2014 तक प्रोसिक्यूशन कितना हुआ सर उनके समय में? 102. मतलब उसको खैर ही नहीं किया आपने. उसको मनी लॉन्ड्रिंग के काम को रोकने के लिए उस समय कंट्रोल करके रखे थे. नहीं, आप चुप बैठो, मनी लॉन्ड्रिंग होते रहने चाहिए, आप क्यों एक्टिव हो रही है? ऐसे करके उसको क्या बोलते हैं, चिड़िया बंद पिंजरे में चिड़िया बंद कर रखा. ईडी को पूरे इंडिपेंडेंस जब देते हैं, आप अपने कानून के तहत जो भी करना है करो. मैंने बोला 102 केसेस ही प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट तक ले गए थे उनके टाइम में. जब ईडी को इंडिपेंडेंस दिया, आप अपने काम करो, पीएमएलए मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को रोको, 1200 केसेस फाइल प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट हुआ. ये 10 आ रही सर, क्योंकि जल्दी में है. नंबर ऑफ पर्सन्स कन्विक्टेड उनके समय पर 0. ठीक है, उनके समय पर कन्विक्शन 0. मगर हमने अभी हमें पूछ रहे हैं कितना कन्विक्शन हुआ भाई? बोल रहे हैं सर 58 कन्विक्शंस हुआ है. 58 कन्विक्शंस. हाँ, आपके 0 है रिकॉर्ड आउट ऑफ सर. व्हेन आई आंसर ए क्वेश्चन उनको लगता है सुई. कुछ और प्रश्न पूछते हैं. रेस्टिट्यूशन उनके समय में कितना सर? मनी लॉन्ड्रिंग जहां हुआ है
उससे पैसा निकाल करके कानूनन जिनको वो न्यायबद्ध तरीके से वापस करना है उसको रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। उनका समय में शून्य, कोई एक पैसा वापस नहीं आया इस भारत देश के खजाने में। मगर रेस्टिट्यूशन हमारे समय में इस 10 साल में कितना आया सर? 10 भी नहीं, 9 साल में अप टू 23 कितना आया? 16,333 करोड़। जीरो आपका, हमारा पैसा जारी है वापस जिनको जाना है। ओके सर, ठीक है। नाउ रेड कॉर्नर नोटिस, इससे जुड़े हुए बहुत सारे मामला उठाए, मैं वो भी आंसर करती हूँ। गलत करके बाहर भाग गए लोग, उनके समय पर जितने लोगों को रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू किया उनके समय पर जीरो। हमारे समय पर 9 साल में 24 लोगों के ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस है। ठीक है सर। और इनके समय पर पैसा लेकर के बैंक को चीट करके बाहर जो गए उनके ऊपर भी एक्स्ट्रेडिशन ऑर्डर्स पास करवाए, उनको भी वापस ले आएंगे। ऑर्डर तो हो गया है विजय मल्ल्या, नीरव मोदी और संजय भंडारी के ऊपर ऑर्डर हो गया, उनको एक्स्ट्रेडिशन करने का ही बाकी है। सो टोटल अमाउंट कॉन्फिस्केटेड फ्रॉम द FEOA मतलब फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, उनके प्रॉपर्टी से कितना पैसा हमने वसूल किया इनके समय पर? कितना आदिर जी? जीरो। सही बात है, जीरो। हमारे टाइम में 906.74 करोड़ फ्यूजिटिव ऑफेंडर से वापस आए। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।